السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی توسیع کی جائے گی۔ اطراف کی 27 بلدیات کو کیا جائے گا ضم۔ ریاستی کابینہ کے اجلاس میں ہوا فیصلہ۔ تلنگانہ میں پھر سے آیا انتخابی ماحول۔ ریاست میں مجالس مقامی الیکشن کے لیے اعلامیہ جاری۔ 11، 14 اور 17 دسمبر کو 3 مراحل میں ہوگی رائے دہی۔ اسی دن ہوگا رزلٹ کا اعلان۔ 8 اور 9 دسمبر کو تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت۔ بنگلور حیدرآباد علاقے کو ڈیفنس راہداری قرار دینے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی اپیل۔ وی نوین یادو نے اسمبلی کی رکنیت کا لیا حلف۔ اسپیکر نے اپنے چیمبر میں دلایا عہدہ اور رازداری کا حلف۔ حلف برداری کے بعد تعاون پر مجلس کا بھی ادا کیا شکریہ۔ الیکٹرانکس کے شو روم میں لگی آگ سے مرنے والوں کی تعداد ہو گئی 2۔ شو روم کے مالک شیوا کمار بھی علاج کے دوران فوت ہو گئے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کابینہ نے GHMC کی توسیع کے لیے اطراف کی 27 میونسپلٹیز کو ضم کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کے لیے GHMC ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں انڈر گراؤنڈ کیبل سسٹم سمیت متعدد اہم ترقیاتی فیصلے کیے گئے۔ تلنگانہ کابینہ نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کی حدود میں نمایاں توسیع کرتے ہوئے شہر کے اطراف و اکناف کی 27 میونسپلٹیز کو GHMC میں ضم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اہم فیصلہ چیف منسٹر انمولا ریونت ریڈی کی صدارت میں سیکریٹریٹ میں منعقدہ 4 گھنٹے طویل کابینہ اجلاس میں کیا گیا۔ کابینہ کے مطابق جن میونسپلٹیز کو GHMC میں شامل کیا جائے گا ان میں پیدامبرپیٹ، جلپلی، شمشاباد، ترکیامجل، منی کونڈا، نارسنگی، آدی بٹلہ، تکو گڑا، میڈچل، دمائی گڑا، ناکارم، پوچارام، گھٹکیسر، کونڈا پوچمپلی، تھومکنٹا، کومپلی، ڈوڈنگل، بولارام، تیلاپور، امین پور، بڈنگ پیٹ، بلہ گڑا جاگیر، میر پیٹ، بوڈوپل، پیر زادی گڑا، جواہر نگر اور نظام پیٹ شامل ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد کے کور اربن علاقے میں موجود میونسپلٹیز اور کارپوریشنوں کو GHMC میں شامل کرنے کی غرض سے GHMC ایکٹ میں ترمیم بھی کی جائے گی۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا اور وزراء ڈی سریدھر بابو، اتم کمار ریڈی، لکشمن کمار، جوبلی کرشنا راؤ اور وی سری ہری نے اجلاس کی تفصیلات میڈیا کے سامنے پیش کی۔ وزراء نے بتایا کہ تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد نئی کارپوریشنوں کی تشکیل کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ وہیں کابینہ نے حیدرآباد میں انڈر گراؤنڈ برقی کیبل سسٹم متعارف کروانے کے پروجیکٹ کی بھی منظوری دی ہے۔ عہدیداروں نے بنگلور سمیت ملک کے دیگر بڑے شہروں کا دورہ کر کے اس نظام کا جائزہ لیا، جس کے بعد حیدرآباد میں یہ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ کی کل لاگت 14,725 کروڑ روپے بتائی گئی ہے، جس پر مرحلہ وار عمل کیا جائے گا۔ شہر کو 3 برقی سرکلز میں تقسیم کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں برقی کیبل کے ساتھ ٹی فائبر اور دیگر نیٹ ورکنگ کیبلز کو بھی انڈر گراؤنڈ کیا جائے گا۔ منسٹر سریدھر بابو کے مطابق یہ پروجیکٹ حیدرآباد کو عالمی معیار کا شہر بنانے کے منصوبے کا اہم حصہ ہے۔ نئی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی زرعی و سرکاری کنیکشنز نئے ڈسکیم کے تحت کابینہ نے 2 موجودہ ڈسکیم کمپنیوں کو برقرار رکھتے ہوئے ایک نئی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زرعی کنیکشنز، لفٹ اریگیشن اسکیم، مشن بھاگیرتا، میٹرو واٹر کنیکشن اور محفوظ پانی اسکیم کے کنیکشن نئے ڈسکیم کے تحت منتقل ہوں گے۔ پاور قربت پر پیش کی گئی پاور پریزنٹیشن کا جائزہ لینے کے بعد کابینہ نے 3000 میگا واٹ سولار پاور کی خریداری، 2000 میگا واٹ پمپ اسٹوریج پاور کے لیے ٹینڈرز طلب کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔
गैर रिवायती तवानाई, पंप स्टोरेज, पावर प्लांट्स और सनती यूनिट्स के लिए खुद बरक़ी पैदा करने की इजाज़त देने पर भी इत्तेफाक किया गया। इसके साथ साथ काबीना ने मज़ीद चंद अहम फैसलों की मंजूरी भी दी, जिनमें कोत्तागुड़म ज़िले के दोमुमगुड़ियम मंडल में SC/ST यंग इंटीग्रेटेड अकामती स्कूल के लिए 20.28 एकड़ अराज़ी मख्तस, मुलुक में स्पोर्ट्स स्कूल के लिए 40 एकड़ अराज़ी की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर के ऐलान के मुताबिक जुबली हिल्स असम्बली हलक़े में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर के क़याम की मंजूरी, रियासत में नए 6 एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स की मंजूरी जो मौजूदा 56 सेंटर्स के अलावा होंगे। रामागुंडम में 800 मेगावाट बरक़ी प्लांट को NTPC के तहत कायम करने का भी फैसला किया गया। तेलंगाना काबीना का ये इजलास शहरी तरक्की, पावर सेक्टर इस्लाहात, सनती सरमायाकारी, तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर और हैदराबाद को स्मार्ट सिटी के आलमी मियार तक ले जाने के बड़े फैसलों से भरपूर रहा। GHMC की तोसी और अंडरग्राउंड केबल सिस्टम को मुस्तक़बिल की शहरी हुक्मरानी में बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। హైదరాబాద్ తెలంగాణ కోర్ అర్బన్ ఏరియా పరిధిలో ఉన్న మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లన్నీ కూడా GHMCలో విలీనం చేయాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల బయట ORRను ఆనుకొని ఉన్న 27 అర్బన్ లోకల్ బాడీస్, మున్సిపాలిటీ కానీ కార్పొరేషన్లను GHMCలో విలీనం చేయడానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. तेलंगाना में एक बार फिर इंतखाबात का माहौल शुरू हो गया है। रियासत में पंचायत और मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर श्रीमती रानी कमुदेनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शेड्यूल के मुताबिक 12,000 सरपंचों का और 1,12,000 वार्ड मेंबर्स का इंतखाब किया जाएगा। इसके लिए रियासत भर में जुमला 3 मराहल में 11, 14 और 17 दिसंबर को 3 मरहले में राय दही होगी और राय दही की तकमील के फौरी बाद नताइज का भी ऐलान कर दिया जाएगा। राय दही का वक्त सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा और इसी दिन 2 बजे से वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी और गिनती के बाद नताइज का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नोटिफिकेशन की इजराई के साथ ही रियासत भर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। रानी कमुदेनी ने बताया कि रियासत भर में देही इलाकों के राय दहिंदों की तादाद 1.66 करोड़ है। पहले मरहले में 4,236 सरपंच की जायदादों और 37,440 वार्ड्स मेंबर्स के लिए इंतखाबात होंगे। पहले मरहले के चुनाव के लिए 27 नवंबर से पर्चा नामजदगी के अदखाल का आगाज होगा। 30 నవంబర్లో ఉంటుంది. ఇవి 193 మండలాల్లో 4,333 సర్పంచ్ స్థానాలకు 38,350 వార్డు స్థానాలకు పోల్ డే 14 డిసెంబర్న జరుగుతుంది. ఇక లాస్ట్ పోలు అన్ని జిల్లాల్లో 31 జిల్లాల్లో 182 మండలాల్లో 64 మండలాల్లో 12,728 సర్పంచ్ స్థానాలకు 112,242 వార్డు స్థానాలకు ఎన్నికల డేట్లు ఖరారు చేయడం జరిగింది. ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక కూడా ఆయా పోల్ డేస్ లో ఎన్నిక చేయబడతారు. ఈ ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ ఒక వివరాలు అలాగే నోటిఫికేషన్ వివరాలు పొందుపరిచి మీ అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా ఇది ఈ రోజు తారీఖులో గెజెట్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ గెజెట్ యొక్క ప్రతిని కూడా మీకు నేను ఈ సమావేశం అంతంలో చూపించడం జరుగుతుంది. మీరు అది మా వెబ్సైట్లో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాము. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత, 1 గంట పోయిన తర్వాత మీరు అది డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. గ్రామ వార్డుల వివరాలతో సహా దాంట్లో
ప్రింట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి అది చాలా పెద్ద డాక్యుమెంట్. అది ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు. ఈసారి గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు గ్రీవెన్స్ మాడ్యూల్ కూడా మా యొక్క వెబ్సైట్లో రెడీ చేశాము, మీరు చూడవచ్చు. ఈ గ్రీవెన్స్ మాడ్యూల్ అనేది కొత్తగా కొన్ని రోజుల వరకు ఇది మా వెబ్ పోర్టల్ ద్వారా మీరు ఎవరైనా సరే కంప్లైంట్లు ఇచ్చుకోవచ్చును. 2-3 రోజుల తర్వాత లేదా వారం రోజుల తర్వాత అయినా సరే మేము దీని యాప్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా కల్పించాలని అనుకుంటున్నాము. ఒక కాల్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేశాము. ఆ నంబర్ కూడా మీకు మేము మా ఒక పిఆర్ఓ డెస్క్ ద్వారా మీకు తెలియజేస్తాము. అది యూ కెన్ సీ ఫ్లాష్ నోటీస్. ఇదే విధంగా కంటిన్యూస్ బేసిస్ మీద సూచనలు ప్రకటనలు మీ సహకారంతో చేయాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ఇది ఈ గజెట్లో ముందు నేను ఏముందో వివరిస్తాను, తర్వాత మీకు చెప్తాను. సరేనా? నోటిఫికేషన్ ఈ రెండో పేజ్ ఏమో మీకు ఇందాక మేము చూపించినటువంటి షెడ్యూల్ పూర్తి వివరాలు ఉంటాయండి. ఇది తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంటుంది, మీకు తెలిసిన. तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन पर ग्लोबल समिट की तैयारियों का रियासत में आगाज कर दिया गया है और हुकूमत इस पर करीबी नजर रखते हुए हर शोबे का अहाता करने की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन पर एक आला सतही का जायजा इजलास मुनक्कद किया। रियासती वजीर व IT डी श्रीधर बाबू और आला ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना राइजिंग पर ग्लोबल समिट का 8 और 9 दिसंबर को इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस भारत फ्यूचर सिटी में मुनाक़द की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस चोटी कॉन्फ्रेंस का मकसद सारी दुनिया के सामने तेलंगाना के विजन को पेश करना है ताकि वो तेलंगाना में दस्तयाब मौक़े से वाकिफ हो सकें। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तमाम महकमाजात के मंसूबों को अमली जामा पहनाने के इक़दाम करें। तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और नक़ाइस से पाक इंतज़ामात होने चाहिए। इस चोटी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में उज़रा यौमिया हसास पर जायज़े इजलास मुनक़्क़द करेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फ्रांसीसी कंपनी सॉफ्रान के लिए MRO सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 8 और 9 दिसंबर को मुनक़्क़द होने वाले तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की बाज़ाब्त दावत दी है। उन्होंने बताया कि सॉफ्रान के LEAP इंजन, MRO यूनिट और राइफल के M88 इंजन के नए मरकज की संग बुनियाद के साथ तेलंगाना एरोस्पेस व दिफाई शोबे में एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के दिफाई और एरोस्पेस एक्सपोर्ट्स गुज़िश्ता साल दुगने होकर सिर्फ 9 माह में 30,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गए, जो फार्मा सेक्टर से भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से बेंगलुरु हैदराबाद राहदारी को सरकारी तौर पर डिफेंस और एरोस्पेस को रेडॉर करार देने की अपील की। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि 30,000 एकड़ पर कायम किए जाने वाला भारत फ्यूचर सिटी आलमी मियार के ग्रीन नेट ज़ीरो स्मार्ट सिटी के तौर पर उभरेगा और इसी मुकाम पर मुनक़्क़द होने वाली कॉन्फ्रेंस में रियासत 2035 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन मैशियत का विजन पेश करेगी, जिसके लिए वज़ीर आज़म को मदऊ किया गया है। Building a Bharat Future City spread in 30,000 acres of land. It will be planned totally green, net zero, and India's answer to New York, Tokyo, Dubai, or Singapore, or South Korea. I invite you all, Honorable Prime Minister Modi ji, to Telangana Rising 2047 Global Summit at Bharat Future City on December 8th and 9th to unveil our vision. We wish to become a $1 trillion strategy by 2034 and $3 trillion by 2047.
associating with Viksit Bharat plan. I also appeal to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to declare Bangalore Hyderabad as a defense and aerospace corridor that will contribute to Viksit Bharat. तेलंगाना नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट प्रोग्राम का दूसरा मरहला राजभवन में मुनक्कद हुआ। इस मौके पर गवर्नर डॉक्टर जिष्णुदेव वर्मा के अलावा रियासती वजीर आईटी व सनत डी श्रीधर बाबू और दूसरों ने शिरकत की। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कौमी यकजहती की कोशिशों के तौर पर तेलंगाना में इज्तिमाई और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की को यकीनी बनाने के इक़दाम पर जोर दिया गया। डिजिटल खवानगी में शुमाली मशरक़ी रियासतों की तेज़ रफ्तार को यकीनी बनाने, वहाँ सलाहियतों को फ़रोग़ देने और अवामी डिजिटल खिदमात को आगे बढ़ाने के इम्कानात पर गौर किया गया और तेलंगाना के मॉडल की तर्ज पर तरक्याती इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम के जरिए शुमाल मशरक़ी रियासतों और तेलंगाना के दरमियान टेक्नोलॉजी राब्तों और टेक राहदारी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा मुश्तरका इख्तिराई लैब्स के क़याम और ग्रीन एनर्जी के शोबे में इश्तराक के इम्कानात का भी जायज़ा लिया गया। इलावा अज़ी मसनूई ज़हानत की यूनिवर्सिटी, मसनूई ज़हानत डेटा एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह पर भी गौर हुआ। बीसी तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करते हुए मजालिस मुक़ामी इंतख़ाबात मुनक़्क़द करने का मुतालबा करते हुए बीसी तंजीमों के क़ायदीन ने आज शहर में एहतजाज किया। इन कायदीन ने टैंक बैंड पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे के करीब सड़क पर बैठकर एहतजाज किया है और मुतालबा किया कि हुकूमत की जानिब से जो जियो 46 जारी किया गया है इसे फौरी मनसूख किया जाए और बीसी तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए ही इंतख़ाबात मुनक़्क़द करने का मुतालबा किया। बीसी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों कारकुनों ने तेलुगुतल्ली फ्लाईओवर के करीब धरना मुनज़्ज़म किया और 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात जद्दोजहद कमेटी की क़यादत में रास्ता रोको एहतजाज भी किया गया। इस एहतजाज के नतीजे में टैंक बैंड जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा और दूर तक गाड़ियां रुकी रहीं। कहा गया है कि एहतजाजियों और गाड़ी रानों में इस एहतजाज की वजह से कुछ झड़पें भी हुई हैं और तकरार भी देखी गई। तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले तक ट्रैफिक मुतासिर रही, जिसे बाद में पुलिस ने जद्दोजहद के बाद बहाल कर दिया। हालिया जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाले वी नवीन यादव ने आज असेंबली की रुकनियत का हलफ लिया। नवीन यादव को स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने अपने चंबर में मुनक़दा सादा सी तकरीब में और ओहदा और राजदारी का हलफ दिलवाया। नवीन यादव ने तेलुगु ज़बान में भगवान के नाम पर हलफ लिया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी दयानतदारी और गैर जानिबदारी के साथ पूरा करने के अहद का भी इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस के कायदीन बशमुल साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव और दूसरे भी मौजूद थे। तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और दूसरों को भी मदऊ किया गया था। ताहम पता चला है कि तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों और दीगर मसरूफियात की वजह से ये कायदीन हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में नवीन यादव ने बीआरएस उम्मीदवार एम सुनीता को शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल की थी। నవీన్ యాదవ్ వి అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడైన నవీన్ యాదవ్ వి అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जुबली हिल्स के एमएलए नवीन यादव ने इन्हें उम्मीदवार बनाने पर एआईसीसी क़यादत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वज़ीर आला और कांग्रेस हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियों ने इनकी जीत में अहम किरदार अदा किया है।
उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने पर जुबली हिल्स अवाम का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि वो अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे, हल्के की तरक्की और मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देंगे। नवीन यादव ने कहा कि 30 बरसों से इनका खानदान अवामी खिदमत में मसरूफ है। वो आइंदा बल्दी इंतखाबात में भी कांग्रेस पार्टी की भारी जीत के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। सोशल मीडिया पर इनके खानदान को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम का साथ ही इनकी असल ताकत है। उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में ताउन पर मजलिस का भी शुक्रिया अदा किया। ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వారందరి యొక్క కష్టం కృషి మా ప్రాంత ప్రజల యొక్క ఆశీస్సులతో నేను ఈరోజు మీ ముందు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందినాను. మరోసారి వారందరూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు కాన్స్టిట్యూషన్ డే సందర్భంగా అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు నేను ప్రమాణ స్వీకారం కూడా అనుకోకుండా ఈరోజు తీసుకున్నాను. బట్ ఈరోజు కాన్స్టిట్యూషన్ డేగా అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు నేను ఓత్ తీసుకోవడం. మరి నేను తీసుకున్నటువంటి ప్రమాణం నా జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంత ప్రజల యొక్క నమ్మకం, నా జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంత ప్రజల యొక్క ఆశీర్వాదానికి నేను ప్రమాణం చేసినాను. వారు పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకునే విధంగా ఆ ప్రాంత ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరిస్తూ ప్రాంత అభివృద్ధిని మా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ వారి దగ్గర ఒక మంచి పేరు సంపాదించుకుంటాను. పార్టీ గౌరవం నిలబెడతాను, పార్టీ పెద్దల గౌరవం నిలబెడతానని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి రేవంత్ అన్న ప్రజాపాలన పైన ప్రజలకు ఒక బలమైన నమ్మకం ఉందంటే మా జూబ్లీహిల్స్లో ఎన్ని బై ఎలక్షన్ గెలవడమే దానికి ఉదాహరణ. రేపు జరగబోయే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ కావచ్చు, రానున్న కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ కావచ్చు, అన్నిట్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచి విజయం సాధించబోతుందనే బలమైన నమ్మకాన్ని జూబ్లీహిల్స్ వేదికగా ఈ ప్రాంత ప్రజలు అందించినారు. అండ్ డెఫినెట్గా పార్టీ ఇచ్చినటువంటి మాటకి కట్టుబడి అందరికి కూడా సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తూ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తూ పార్టీని జూబ్లీహిల్స్లోనే కాకుండా నగరంలో కూడా బలపరుస్తామని తెలియజేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీని నగరంలో కూడా రేవంత్ అన్నని బలపరుస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీని బలపరుస్తామని తెలియజేస్తూ ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారానికి వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలకు, పెద్దలకు అండ్ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు అన్న గారికి, మా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి గాంధీ భవన్ సభ్యులకు ఈరోజు ఓత్ తీసుకున్న తర్వాత మొదటిసారిగా గాంధీ భవన్ రావడం జరిగింది. గాంధీ భవన్ పెద్దలందరినీ కూడా కలిసినాను అండ్ మిమ్మల్ని అందరూ కూడా పరిచయం చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా భావిస్తూ ప్రజల కష్టాలను దూరం చేస్తూ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తూ जीएचएमसी काउंसिल के इजलास में आज मलकाजगिरी के एमएलए मर्री राजशेखर रेड्डी ने शिरकत करते हुए अपने हल्के इंतखाब से मुताल्लिक अहम तरक्याती मसाइल को ओहदेदारों के सामने पेश किया। उन्होंने मलकाजगिरी में फौरी तकमील तलब तरक्याती कामों के लिए फंड्स की आजिलाना मंजूरी की दरख्वास्त की, जबकि विनायक नगर डिवीजन के जेके कॉलोनी में बॉक्स ड्रेन की तामीर को भी फौरन मंजूर करने की अपील की और जीएचएमसी कमिश्नर आर.वी. करनान को शख्सी तौर पर याददाश्त पेश की। बादअज़ां जीएचएमसी ऑफिस के मीडिया पॉइंट पर अपने रुफ़क़ा अरकान असम्बली के साथ एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने हैदराबाद के सनती इलाकों की अराजी को फरोख्त करने के लिए पेश करने के फैसले की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि अवाम की कीमती अराजी को माफिया के हवाले करने की इस गैर मुनसिफाना कार्रवाई को हर सूरत रोकेंगे। पुराने शहर के शालीबंडा इलाके में वाक़ इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में लगी भयानक आग की वजह से मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। एक शख्स कल ही दौरान इलाज अपनी जख्मों की वजह से फौत हो गया था, जिसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि कल रात शोरूम के मालिक शिवा कुमार की भी मौत वाक़ हो गई। कहा गया है कि शिवा कुमार आग लगने के वाक़े में जुमला 80% तक झुलस गए थे और इन्हें शहर के मुख्तलिफ दवाखानों से इलाज के लिए रुजू किया गया था। कल रात दौरान इलाज शिवा कुमार की भी मौत वाक़ हो गई, जिसके बाद आग लगने के वाक़े में अब तक मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। मजीद 7 अफराद जख्मी हैं, जिनका शहर के मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज किया जा रहा है। वाज़ेह है कि पीर की रात इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में भयानक आग लग गई थी, जबकि जिसके नतीजे में ये अमवात हुई हैं। आग लगने के वाक़े में एक ऑटो रिक्शा व 2 पहिए गाड़ियां भी जलकर तबाह हो गई थी। तकरीबन 10 फायर इंजनों ने 2 घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया था। पुलिस आग लगने के वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रही है।
प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल सैयद शाह मोहम्मद खैर उद्दीन कादरी ने मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के हमरा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी से मुलाकात की। वफद ने चेयरमैन से दरख्वास्त की कि वो CEO वक्फ बोर्ड के हमरा इश्तराक व ताउन के साथ दफ्तरी उमूर को बगैर किसी खलल के यकीनी बनाएं ताकि ज़रूरतमंद दरख्वास्त गुजारों को मसाइल और मुश्किलात से महफूज रखा जा सके। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूफी खैरुद्दीन कादरी ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से होने वाली बातचीत की तफसील बयान की और कहा कि इश्तराक व ताउन से अवामी खिदमात को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि रियासती वक्फ बोर्ड तेलंगाना के चेयरमैन साहब जनाब सैयद अजमतुल्ला हुसैनी साहब और CEO जनाब असदुल्ला साहब, इन दोनों में तालमेल का फुकदान पाया गया है और किसी मामले में इन दोनों की जो है ना मफाहिमत बिल्कुल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के कई उमूर लैलुतल में पड़े हुए हैं और बिलखुसूस रियासत के अइम्मा मौज़नीन को जो दिसंबर के पहले हफ्ते में 3 महीने के एजाज़ी उनको पहुंचना है, हो सकता है उसमें भी ताख़िर हो जाए, लेकिन कोशिश तो ये की जा रही है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में उनको एजाज़ी मिल जानी चाहिए। तो इसी ज़िमन में शहर हैदराबाद के मोअज़्ज़िज़ तरीन शख्सियात और मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान आज रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से हमने तकरीबन 1-1.5 घंटे तक तफसीली तौर पर गुफ्तगू की और तमाम हालात से वाक़फ़ियत हासिल हुई और कुछ बातें हमारे सामने आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम CEO साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो इसके ताल्लुक़ से मज़ीद जो इक़दाम किए जाने वाले हैं वो 5 दिसंबर के बाद जो उम्मीद पोर्टल का काम पूरी रियासत में ज़ोरों शोर से चल रहा है, उसके बाद में एक हतमी फ़ैसला लिया जाएगा और इसके ताल्लुक़ से ठोस इक़दाम के लिए 5 दिसंबर के बाद एक खुसूसी मीटिंग जो है ना रखी जाएगी और उसमें तमाम पहलुओं का जायज़ा लेते हुए इस तालमेल के फुकदान को ख़त्म करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश की जाएगी। म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन INTUC ने अपने वर्किंग सदर आदिल शरीफ की क़ियादत में मरकज़ की जानिब से 4 लेबर कोड्स के निफाज की सख्त मुखालिफत करते हुए इन्हें मजदूर दुश्मन और ट्रेड यूनियन जमहूरियत पर सीधा हमला करार दिया है। धरना चौक इंदिरा पार्क पर ऑल इंडिया INTUC के सदर डॉक्टर G संजीवा रेड्डी की सदारत में मुनक़दा एहतजाजी धरने में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन LIC केगवाई प्लेटफॉर्म वर्कर्स BHEL और रेलवे समेत मुख्तलिफ शोबों के 5000 से ज़ायद कारकुनों ने शिरकत की। आदिल शरीफ ने कहा कि ये लेबर कोड्स मुलाजिमतों को गैर महफूज बनाते हैं, हायर एंड फायर को आसान करते हैं, ट्रेड यूनियनों को कमज़ोर करते हैं, वर्क प्लेस सेफ्टी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को घटाते हैं, जबकि फ़ायदा सिर्फ कॉरपोरेट्स को पहुंचाते हैं। यूनियन ने लेबर कोड्स की फौरी वापसी और मजदूर तंजीमों से बामाना मुशावरत का मुतालबा करते हुए कहा कि मौजूदा मेहनत क़वानीन को मजबूत बनाया जाए, यूनिवर्सल लिविंग वेज नाफिज हो और मजदूरों की इज्जत व तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए। उसको छीन कर 4 लेबर कोड में लेकर आए। इसके खिलाफ में हम आंदोलन जारी रखेंगे। ये लेबर कोड 2019 में जब कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पर लागू होने वाला था, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से, मजदूर आंदोलन की वजह से उसको जो है डिले किया गया। लेकिन बिहार इलेक्शन के बाद इमीडिएटली क्या वजह है ये 4 लेबर कोड को लाने के लिए? पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ट्रेड यूनियन के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ और ये 4 लेबर कोड लाया गया है। इसके खिलाफ मजदूर आंदोलन जारी रहेगा। इसके खिलाफ हम जो कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान भर में सारा काम रोककर जो है जब तक कि मोदी गवर्नमेंट ये 4 लेबर कोड को वापस ना ले, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और मजदूरों की जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट करना पड़ेगा, उनकी सैलरी 26,000 रुपए तक करना पड़ेगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी करना पड़ेगा। अगर कोई मजदूर मर जाता है तो उसके बच्चों को नौकरी देना और उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये जब तक के जो है जारी नहीं रहेगा, आंदोलन हमारा जारी रहेगा और मोदी हुकूमत को उखाड़ के फेंकने का जो है हम प्रयास करेंगे। मजदूर आंदोलन जिंदाबाद, INTUC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज सुबह ECI
ILX रोड पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक खुसूसी ट्रैफिक आगाही प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मुहिम की क़ियादत इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस श्री रुद्रवीर कुमार ने की, जबकि सब इंस्पेक्टर जी मधु समेत ट्रैफिक पुलिस के दीगर अमले और लाइन ऑर्डर पुलिस एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम की नुमाया खुसूसियत ये रही कि 20 रॉडी शीटर्स को इस्लाही सरगर्मी के तौर पर इस मुहिम में शामिल किया गया। तमाम शुरका ने मुहिम के लिए तैयार करदा टी शर्ट्स और कैप्स पहनकर ट्रैफिक के रहनुमाई में पुलिस की मदद की और ECILX रोड पर गाड़ियों की रवानी बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। पुलिस के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस अफराद को मुस्बित सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना और ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करना है। आदिलाबाद जिले के SP अखिल महाजन IPS ने 1 टाउन पुलिस स्टेशन का सालाना मुआयना करते हुए स्टेशन की कारकर्दगी, रिकॉर्ड गाड़ियों और सफाई का तफसीली जायजा लिया और एहलकारों को हिदायत दी कि फराइज की अंजाम दही में ईमानदारी, नज़्म व ज़ब्त, मुस्तैदी और वक्त की पाबंदी को हर हाल में यकीनी बनाएं, क्योंकि पुलिस की वर्दी अवाम के एतमाद और इदारे के विकार की अलामत है। SP ने शहर में खुले आम शराब नोशी, नशे में ड्राइविंग, चरस की खरीदो फरोख्त, समाज दुश्मन सरगर्मियों, चोरियों और मालियाती जुराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हुए सब्सिडी वाले चावल की गैर कानूनी मुंतकिली रोकने के लिए खुसूसी निगरानी की भी हिदायत दी। उन्होंने थाने आने वाले शिकायत कुनिंदगान के साथ इज्जत व एहतराम के साथ पेश आने और हर शिकायत को वार्ड पुलिस ऑफिसर के जरिए फौरी तशवीश के दायरे में लाने पर जोर दिया। साथ ही वार्ड ऑफिसर को रोजाना फील्ड में घूमकर समाजी हालात में और मुश्तबा सरगर्मियों की मालूमात इकट्ठा करने की हिदायत दी। आदिलाबाद जिले के SP अखिल महाजन IPS ने अमन व अमान को मजबूत बनाने के लिए आधी रात के वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदमाश अनासिर और मुश्तबा अफराद के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन चलाया, जो रात 11 बजे से 1 बजे तक जारी रहा। इस दौरान उन्होंने महालक्ष्मी वाडा, SC कॉलोनी और शांति नगर में रॉडी शीटर्स के घरों का अचानक मुआयना किया। इनकी मुजरिमाना तारीख, मौजूदा तर्ज ज़िंदगी और समाजी रवैये से मुताल्लिक़ तफसीली पूछताछ की और सख्त तनबियात देते हुए कहा कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर फौरी कार्रवाई होगी और दोबारा जुर्म करने वालों को सीधा जेल भेज दिया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान मशकूक गाड़ियों की जब्ती, खिलाफे ज़ाब्ते घूमने वालों की चेकिंग और नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। SP ने एहलकारों को रात के वक्त मौसर गश्त और समाजी दुश्मन व मालियाती जुराइम के असनादात पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहरियों को पुरअमन माहौल को फराहम करना पूरी पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है और किसी किस्म की जुर्म पेशे हरकत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रियासती क़वानीन व अदफ़ाल बहबूद के चेयरमैन M वेंकट ने कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के लंगापुर मंडल के मोदीगुड़ा गांव का दौरा करते हुए इन क़बायली मासूम बच्चों की खबरगिरी की जो हाल ही में वालिदीन के इंतकाल के बायस यतीम हो गए थे। उन्होंने बच्चों को 50,000 रुपये की माली इमदाद और ज़रूरी अशिया फराहम की और मीडिया से बात करते हुए बताया कि अखबारी इत्तलात के बाद वो फौरन गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया जाए, जहां बच्चे जहनी सदमे के साथ सेहत व जल्दी बीमारियों का शिकार पाए गए। वेंकट ने हुकूमत से अपील की है कि ITDA की खुसूसी फंड्स के जरिए इन बेसहारा कबायली बच्चों के लिए फौरी रिहाइश, तब्बी इमदाद और महफूज पनाहगाह फराहम की जाए। गाँव वालों ने इनकी इस इंसानियत नवाज पहल की सताइश की। इस मौके पर पटेल रामचंद्र, सतीश मुनीत, समाधन डोंगरे, अंबेडकर सेवा समिति इंटरनेशनल आसिफाबाद के कॉमेडी अशोक, समाजी कारकुन कडियम दत्ता, गुलाम सिंह के ज़िले कायद उत्तम शंकर गुलाम और मुकामी खवातीन व दीगर अफराद मौजूद थे। లేదు సరిగా రావడానికి లింగాపూర్ నుండి ఇక్కడికి రావాలంటే 10 కిలోమీటర్లు రోడ్డు లేదు. అంబులెన్స్ కు ఫోన్ చేసినా కూడా 10 కిలోమీటర్లు మీరు బైక్ మీద తీసుకురండి, ఎలా అయినా రండి, ఇక్కడ నుంచి అంబులెన్స్ వస్తామని అంటారు. ఈ పరిస్థితిలో ఉన్న మోడీగూడ గ్రామం ఇది. 6 పిల్లలు అనాథులు అయ్యారు. నా దృష్టికి వచ్చింది వీళ్ళ గాథ విన్న తర్వాత నేను ఇవాళ ఈ గ్రామానికి వచ్చేయడం జరిగింది. దయచేసి ప్రభుత్వానికి నేను సీఎం గారితోటి, కలెక్టర్ గారితోటి కోరుకున్నది ఒకటే,
మీకు వచ్చిన ఆదివాసుల ఫండ్, ఏజెన్సీకి వచ్చే ఫండ్ ఏదుందో మీరు వీళ్ళ కోసం వినియోగించండి. వీళ్ళ పరిస్థితి చూడండి. మీరు ఒక టీం, ఒక బృందాన్ని పంపించండి. ఆదివాసుల ఏజెన్సీలో ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు, వాళ్ళ బాధలు మీరు వినండి, ఒకసారి వచ్చి చూడండి. చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. వీళ్ళ అనాథులయ్యారు, వీళ్ళ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది. కనీసం ఎవరన్నా వచ్చి ఆఫీసర్లు, కలెక్టర్ గారు, ఏజెన్సీ, మీరు ఇవాళ ఈ ఆదివాసుల్ని మీరు చూసుకుంటే వీళ్ళు మీరు గుండెల్ని బట్టి చూసుకుంటారు. ఏ నాయకులు కూడా ఈ ఏజెన్సీ ఏరియాకు పనిచేసిన నాయకులు, ఆఫీసర్లు ఎవరు మంచిగా ఉన్నారో వాళ్ళని అన్ని రకాలుగా వీళ్ళు చూసుకొని దయచేసి వీళ్ళ గురించి మీరు పట్టించుకోండి. ఇది చాలా పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంది. ఇక్కడ రోడ్లు లేవు. ప్రభుత్వాన్ని కోరుకున్నదే కలెక్టర్ గారు, ఐటీడీ పిఓ గారిని కూడా కోరుకుంటున్నాను. వీళ్ళని ఏ రకంగా 6 మంది అనాథులు అయ్యారు పిల్లలు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఎవరు చూసేటోళ్ళు లేరు. వీళ్ళని ఏ రకంగా ఉన్నారో, వీళ్ళ నిధులు ఏ రకంగా వాడుకోవాలో చూడాలని మాకు విన్నపం. आरमूर शहर के अंगाड़ी बाजार में TUFIDC के 27 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 36 वार्ड्स में BTVCC सड़कों समेत मुतअद्दिद तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया, जिसमें हुकूमत के चीफ एडवाइजर व प्रोटेक्शन सुदर्शन रेड्डी और आरमूर असेंबली हल्के कांग्रेस व इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी ने शिरकत की। आइंदा मरहले में भी TUFIDC के तहत 19 करोड़ 62 लाख रुपए से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जाएंगे, जबकि UIDF के जरिए 18 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर हो चुके हैं, जिनके टेंडर्स जल्द तलब किए जाएंगे। शहर में पीने के पानी के मुस्तकिल हल के लिए 43 करोड़ रुपए की स्कीम भी मंजूर की गई है। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन साई बाबा गौड़, साबिक चेयरमैन पंडित पवन अय्यप्पा श्रीनिवास, साबिक चेयरमैन पंडित पवन अय्यप्पा श्रीनिवास, साबिक वाइस चेयरमैन शेख मुन्नुभाई लिंगोड़ा, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन जीवन, साबिक काउंसलर्स, शहर व मंडल कायदीन, यूथ लीडर्स और पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే ప్రజలకు అందుబాటులో కావాల్సిన సౌకర్యాలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేశారే, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రోజు ప్రజలకు ఏదైతే అవసరాలు ఉన్నాయో దాన్ని ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా తీసుకోమంటున్నాం. 27 కోట్లది. అదేవిధంగా 18.5 crores ఒకటి ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఏదైతే వర్క్స్ ఉన్నాయో అవి చేసుకోమన్నాం. అమృత్ కూడా దాంట్లో డ్రింకింగ్ కానీ ఎక్కడైనా వీకర్ సెక్షన్లో OHSR లేవో దానికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వన్నాం. తర్వాత డ్రైన్స్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వమని చెప్తున్నాం. కాబట్టి మొన్న రివ్యూ చేశాం. మీ ఎమ్మెల్యే గారు వినయ్ గారు, నేను కన్సల్ట్ అధికారులతో రివ్యూ చేసి ఇవన్నీ ఆర్మూర్ ప్రజలకు ఇబ్బంది ఉన్నాయి తొలగించాలని చెప్తాం. అదేవిధంగా బిల్డింగ్ అని పెండింగ్ ఉన్నది. మీదొకటి బోధంది కూడా బిల్డింగ్ పెండింగ్ ఉన్నది. 18లో అవసరమైతే దానికి 4 కలర్స్ బిల్డింగ్ కూడా పెట్టుకున్నామని చెప్పడం జరిగింది. నీ లెక్క చెప్పరాదు, సింపుల్ చెప్పలేదు. वरंगल में टोकल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से नौमुंतखब डिस्ट्रिक्ट कमेटी सदर मोहम्मद अय्यूब को पुरतपाक मुबारकबाद पेश की गई, जहां चेयरमैन अब्दुल जब्बार की क़ियादत में मुनक़दा तहनीती प्रोग्राम में मुअज़्ज़िज़ शहरियों और इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए अब्दुल जब्बार ने मोहम्मद अय्यूब की खिदमात को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो इलाके जाती तरक्की, अवामी मसाइल के हल और समाजी फलाह व बहबूद के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम करेंगे। मुक़र्ररीन ने भी मोहम्मद अय्यूब के इंतखाब को खुश आइन करार देते हुए इन्हें भरपूर ताउन और हौसला अफजाई का यकीन दिलाया, जबकि प्रोग्राम के दौरान फूलों का गुलदस्ता पेश करके इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। कांग्रेस पार्टी के MLC बसरा सारिया साहब को, नायनी राजेंद्र रेड्डी साहब को, और इतने साल से जो यहाँ पे DCC प्रेसिडेंट है वो भी एर्रबेल्ली स्वर्णा साहिबा को, और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को, सीतक्का को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे मुसलमान भाइयों को, और वरंगल डिस्ट्रिक्ट के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर्स को जो मेहनत करे उन सब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब जो माइनॉरिटी मुसलमाना गवर्नमेंट फार्म होने के वास्ते वोट डाल के जीता है उनको, वो नाजरिया से उन्होंने भी ख्याल रखते हैं
मुसलमान ख्याल रखते हैं। आज ईस्ट में जो भी है, आज हमारे अयूब भाई को डीसीसी प्रेसिडेंट आना बड़ी खुशी की बात है। उनको भी सीएम साहब को, हमारे कोंडा सुरेखा मैडम को, कोंडा मुरली साहब को और जिगर जितने लोग अयूब भाई के वास्ते मेहनत करे डीसीसी प्रेसिडेंट आने के वास्ते, उनको शुक्रिया अदा बोलते हैं। आज बड़ी खुशी बात क्या है, मुसलमानों की बड़ी खुशी बात है। जो भी है कांग्रेस आज हमारे को जितना भी एक पोस्ट, एक हजरुद्दीन की एक पोस्ट दी है उधर मिनिस्टर पोस्ट, आज हमारे ईस्ट को भी डीसीसी प्रेसिडेंट बोल तो मामूली पोस्ट नहीं होता, बड़ा पोस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कांग्रेस को तायद करते हैं, हम भी अयूब भाई के पीछे रह के हम काम करेंगे। सब भी जितने भी है हम माइनॉरिटीज अयूब भाई के पीछे रह के हम काम करेंगे। शुक्रिया अदा सीएम साहब को, हमारे जो भी कोंडा सुरेखा मैडम मुरलीधर साहब को शुक्रिया अदा बोलते। अख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तौसी की जाएगी, अतराफ की 27 बल्दियात को किया जाएगा जम, रियासती काबीना के इजलास में हुआ फैसला। तेलंगाना में फिर से आया इंतखाबी माहौल, रियासत में मजालिस मुकामी इलेक्शन के लिए एलामिया जारी, 11, 14 और 17 दिसंबर को 3 मराहिल में होगी रायदही, इसी दिन होगा रिजल्ट का ऐलान। आठ और 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दावत, बेंगलुरु हैदराबाद इलाके को डिफेंस राहदारी करार देने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की अपील। वी नवीन यादव ने असेंबली की रुकनीत का लिया हलफ, स्पीकर ने अपने चंबर में दिलाया ओहदा और राजदारी का हलफ। हलफ बर्दारी के बाद ताउन पर मजलिस का भी अदा किया शुक्रिया। इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में लगी आग से मरने वालों की तादाद हो गई 2। शोरूम के मालिक शिवा कुमार भी इलाज के दौरान फौत हो गए। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।